All right. Before we start, there is a quick note. A lot of you have been asking about the upcoming batch for NATA and JEE, the online batch. I wasn't really going to open up the batch yet, but since a lot of people have been asking me about this, there is a discussion about the upcoming batch on Sunday 18th of April 4 p.m. If you guys are interested, मेरा नंबर है नीचे, आप मुझे व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा. And whatever discussion is going to happen, whatever the timings and other things are, we will be discussing there only. So that out of the way, let's get into the video. Alright, so I'm finally done with the analysis of NATA 2021 April attempt. Now this analysis is based on answer key given by NATA on nata.in. If you have not checked it out yet, I will link it below. nata.in ही है, please check it out. एक बात ध्यान में रखना कि ये तुम्हारा आंसर शीट है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट नहीं है. नाउ दैट आउट ऑफ द वे, लेट मी टेल यू व्हाई वी डू दिस एनालिसिस एंड व्हाई दिस इज important. First of all, I think this is a very challenging thing to do after the paper, because you have to go through every question, you have to find out the difficulty level, you have to find out the topic, you have to find out the logic and all those things. So it becomes a very interesting thing for educators like me to do. Another thing is, see, the paper pattern changed in 2021, so we have very few data points based on which we can predict what's gonna come in the June attempt. So what we do is we take the paper and we analyze it from different parameters, so that we get to know what is the trends, what are the undercurrents in the exam, what is the difficulty level, what are the major subjects, what are the minor subjects, and then we try to extrapolate that data to predict what can come in the June attempt or any future exams. So that is the importance. Now see, you have to understand one thing, that analysis is not a review. A review is an opinion. Analysis is pure data. Analysis give you a lot of data which you can extrapolate later to, maybe mostly we generally do this to revise our study material, or most importantly to do a test series in the later days. So that's all about it. Now for me, there are four major parameters of any exam analysis. First one is how many questions were there and of which marks. So this was given to us by Council of Architecture, that is 1 mark 75 questions, 2 mark 25 questions, and 3 marks 25 questions. So there is nothing new about that. Now the second one I get is what was the number of types of questions. So how many MCQs were there, and how many MSQs, PTQs, and NAQs were there. So we get to know that which question type is given more importance. Last one is what was the difficulty level, to understand that is the question paper difficult or simple or moderate, and what is the ratio of difficult to simple questions, so that we know कि minimum mark कितना आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है. Very complex calculations are there. And lastly, what are the major and minor topics based on number of questions and number of and total marks on those particular topics, so that we can focus more on the topics which have more weightage and less on the topic which are like very few marks. So these are my parameters for analysis of any test. Other people have different parameters, but I'm going to do it my way. Now before we get into the analysis, I want to do a quick run through of the test which is available on nata.in. I'm telling you again, we are not going to solve the test, we are just going to go through, we are going to do a quick run through, and once we do that, we are going to do the analysis right away. ऑलराइट, तो हम आंसर की देखते हैं. 10 अप्रैल का जो पेपर हुआ था नाटा का 2021 का, मैं 17 अप्रैल को 1 बजे दोपहर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो आई टेल यू व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि कल रात को जब मैं देख रहा था तो कुछ और आंसर्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए हैं. हो सकता है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर टाइम के बाद देखो तो और ऑप्शन चेंज होंगे, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात, दिक्कत वाली बात नहीं है.
और सेकेंडली मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं बस एक क्विक कमेंट करूँगा मेरा, और अगर कुछ मुझे कमेंट देना है, रिव्यू देना है क्वेश्चन के बारे में तो वही होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं ये वाला, या पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ओके सो आई थिंक वी विल स्टार्ट। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आई थिंक पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे फिज़िक्स के हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन लिटरली ऐसे हैं कि अगर तुम 10th स्टैंडर्ड तक भी तुमने पढ़ाई किया होगा फिज़िक्स का, बेसिक साइंस का, तो तुम्हें आ जाना चाहिए। तुम्हारा लाइट पे सवाल है, थोड़ा मोशन पे सवाल है, लाइट पे, हाँ मिरर पे सवाल थे, सोलर इक्लिप्स जो ज्योग्राफी होता है उस पर थोड़ा सवाल था। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही मुझे, इतना तो मतलब आई थिंक मैंने जो 1-2 टेस्ट में डाला था वो इसी टॉपिक्स पे था। तो आई थिंक फ्रॉम दिस वी कैन से कि फिजिक्स जो आएगा, सी वॉट एवर प्रिडिक्शंस आई एम मेकिंग, दे आर बेस्ड ऑन वॉट वी हैव राइट नाउ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो 12th ऑफ जून को जो पेपर बोल रहे हैं 12th सेकेंड अटेम्प्ट का, उसमें जो फिजिक्स आएगा वो इसी टॉपिक्स पे आएगा मोर और लेस, और ये इसी सब्जेक्ट्स पे या फिर इसी लेवल का आएगा। उन्होंने वैसे भी कहा था कि न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले फिजिक्स के, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। बहुत ज़्यादा हमें फिजिक्स का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ये बस बेसिक कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए पूछा है। आई डोंट थिंक फिजिक्स का उतना टेंशन लेना नहीं है बेसिकली। नाउ ज्योमेट्री उन्होंने स्पेसिफाई किया था, तो ज्योमेट्री पे स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये ज्योमेट्री और जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है तुम्हारा उसका क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर आई थिंक काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि इसका आंसर डी नहीं हो सकता, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, आइसोसेलेस होना चाहिए। और मैं भी अगर देखो तो अगर ए बी सी अगर तुम ज्वाइन करते हो तो शायद तुम्हें इक्विलैटरल मिल सकता है, लेकिन 1BC करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं मिलने वाला। तो एक बार मेल कर दो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इसके बारे में, शायद वो चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिटरली 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, मैं क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो V21 जो है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, बिकॉज वो आर्क से बनाया गया है। तो एंगल V21 जो है वो 60 डिग्री बनेगा अगर तुम लाइन कनेक्ट करोगे तो पॉइंट 3 जो है, जो V3 लाइन जा रही है वो V2 और V1 को बाइसेक्ट कर रही है, आर्क से तुम देख सकते हो। तो V3 और V1 के बीच में एंगल डेफिनेटली 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल है, ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, बट सिंपल वन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है। व्हाट यू गॉट टू डू इज 70 का जो दूसरा एंगल आएगा वो 110 आ जाएगा, 60 का 120 आ जाएगा। सो 30 + 110 + 120 + 2x = जो भी पेंटागन का टोटल एंगल होता है वो, तो उससे आंसर तुम्हारा C आना चाहिए। 140 सही है इसका आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से उन्होंने वर्बल एबिलिटी चालू किया है। इसमें सिनोनिम्स है, पहला क्वेश्चन तो सिनोनिम या सिमिलर वर्ड्स वाला है। डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बस डिफरेंट है। तो ठीक है, मतलब अगर तुम इसमें तुम अलग अलग ऑप्शन डाल के देखोगे, मोनोपोली की जगह करप्शन डाल के देखो, कंट्रोल डाल के देखो, तो आई थिंक कंट्रोल मेक्स द मोस्ट सेंस, उसका B होना चाहिए। ये तुम्हारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस है या सेंटेंस फॉर्मेशन का है, तो ये भी जम जाएगा। उसके ऑप्शन के हिसाब से सेंटेंस बोल के देखो, PQ SR RS QP, समझ जाएगा तुम्हें कि B इज़ द करेक्ट वन। ये भी सेम ही है, सेंटेंस फॉर्मेशन वाला बोल सकते हो तुम। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने थोड़ा गलत, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग विद द क्वेश्चन, तो उन्होंने सबको सही मार्क दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ग्रेन सॉल्ट का, तो इसका मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि सी ग्रेन ऑफ सॉल्ट होता है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट इज़ कॉल्ड ग्रेन। लेकिन जो आंसर उन्होंने दिया है ग्लास चिप का, आई डोंट थिंक कि ग्लास का सबसे छोटा पार्टिकल चिप होता है, क्योंकि वुडन चिप्स भी होता है, स्टोन चिप्स भी होता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ब्लेड्स ग्लास सही है, लेकिन जिस वेबसाइट से उन्होंने ये उठाया है, मैंने देखा वेबसाइट, तो वहाँ पे भी काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में। सो इट्स अ लिटिल एम्बिग्यूअस क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इसको मार्क मिलना चाहिए। इसको भी आप अगर चाहो तो यू कैन मेल इट टू देम कि ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, क्योंकि इसका लॉजिक डेफिनेटली चिप ग्लास वाला नहीं बन रहा है।
उसके बाद उन्होंने पैसेज दिए हैं। पैसेज अगर मतलब ये इतने मैंने देखे हैं, ये पैसेज इतने सिंपल पैसेजेस हैं कि अगर तुम 10th सेमी इंग्लिश मीडियम से भी किया होगा तो जम जाना चाहिए। आई थिंक अशोक गोयल सर जो है उन्होंने बोला था कि हिंदी में भी होना चाहिए, बट ठीक है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। उनका लेटर भी था आई थिंक निशंक पोखरियाल जो हमारे मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट कि हिंदी में होना चाहिए पेपर या इंग्लिश में होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ 20 के आसपास क्वेश्चंस दिए उन्होंने, टोटल 5 पैसेजेस हैं। डिफ़िकल्ट नहीं है, अगेन डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ से तुम्हारा थोड़ा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जनरल का ये चालू हो रहा है। ये सारे आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो 3 या 2 वाले ही हैं। तो इसको डैडो कहा जाता है। स्कर्टिंग नहीं है या प्लिंथ नहीं है, ट्रेसरी भी नहीं है, ये डेफिनेटली डैडो है। ये वॉल्ट सिस्टम है आपका, ये आपका डॉर्मर विंडो है। ये स्लोपिंग रूफ पे जो इस तरह से विंडो होता है ना, तो उसका जो ट्रायंगुलर पोर्शन अगर होता है विंडो को, उसको डॉर्मर विंडो कहा जाता है। स्लीपिंग विंडो में, स्लीपिंग विंडो भी बोलते हैं उसको अदर साइड में। ये इंडोनेशिया में है शायद, तुक्का मारा है जिन्होंने मुझे बताया कि तुक्का मारा है, लेकिन काफ़ी लोगों का तुक्का सही आया है शायद। क्वेश्चन नंबर 40 जो है कल्चरल एस्थेटिक एंड लैंडस्केप सच एज टी हाउस, ड्राई लैंडस्केप, ट्रेजर टावर, पगोड़ा। इसका जापानीज होना चाहिए। पगोड़ा भी अगर सुना होगा तो जापानीज तुम कर सकते हो, मतलब इतना लॉजिक तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। वाटर मैनेजमेंट 2020 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अच्छा, मुझे आज सुबह मैं पढ़ रहा था एक कमेंट कि ग्वालियर फोर्ट के लिए बोला है। आई एम नॉट श्योर कि वो सही है क्या, लेकिन गोलकुंडा को बोला है तो शायद वाटर मैनेजमेंट के लिए बोला होगा। अच्छा, फेमस फॉर वाटर मैनेजमेंट हैज़ बीन, ओके, आई एम नॉट श्योर, इसका शायद एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे भी। ओके, सो यहाँ से फिर तुम्हारा थोड़ा जोग्राफी वाला पार्ट चालू हो रहा है। तो साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूट्स टू, साउथ वेस्ट मतलब जो तुम्हारा बेसिक मानसून होता है वो वाला मानसून का बात करें तो अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि विच मतलब एग्जैक्टली कितना परसेंटेज है, तुम थोड़ा लॉजिक से भी बता सकते हो कि बिकॉज वी नो कि अगर तुमने थोड़ा सा भी जोग्राफिक पढ़ा है बेसिक ओवरऑल, सो वी नो कि मैक्सिमम मानसून हमारा साउथ वेस्ट से ही आता है। तो इसका 86 मुझे पता भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली कितना है। आई वुड गो विथ 86। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इफेक्टिव फॉर सॉइल, इसका तो चलो सेकंड और फोर्थ है, नो डाउट अबाउट दैट। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ओके, दे आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। विच इज़ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट, ये इसका अजंता एलोरा होना चाहिए, हाँ डेफिनेटली। आइडेंटिफाई द टॉलेस्ट बिल्डिंग, इसका सी है, बुर्ज खलीफा है फॉर श्योर। मोस्ट फॉरेस्ट कवर, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है। मैं कल जब मैंने देखा था तो अरुणाचल प्रदेश था, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश किया है। अगर परसेंटेज वाइज देखते हो तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश है। कुछ 84-85% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज अ स्टेट इज़ अंडर फॉरेस्ट। लेकिन अगर हम नंबर्स में बात करें कि कितना हेक्टेयर है या कितना स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है, तो उसका आंसर मध्य प्रदेश ही है अभी भी। ये क्वेश्चन एक्चुअली जब सबसे पहला आर्किटेक्चर का JEE हुआ था, उसको तब AIEEE बोला करते थे, तब ये क्वेश्चन था। 2005 का क्वेश्चन है ये, मतलब 2005 में अपीयर हुआ क्वेश्चन है ये AIEEE में, जो जिसको अभी हम JEE कहते हैं। विच इवेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च, इसका वर्ल्ड वाटर डे है, वी नो दैट। ये क्वेश्चन नंबर 48 से तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग चालू होता है, तो इसको ठीक है, मतलब X और Y या ABC लेके हो जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 49 जो है क्वेश्चन नंबर 49, ये एक्चुअली डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तुम्हें बस उनको प्लेस करके उनका पोजीशन चेंज करना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है, ये दिस इज वन ऑफ द ओनली फ्यू क्वेश्चंस जो नॉन वर्बल एबिलिटी पे है इसका, और ये बहुत ही है, इसका 1 डिफिकल्टी लेवल है। आई थिंक इसका B आना चाहिए, यस। ये मैचिंग डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ठीक है, मतलब सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। 52 में अगर तुम्हें इसका बेसिक पता होगा तो इसका आंसर D होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ D है। 53 थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब तुम्हें थोड़ा नॉलेज, विजुअल नॉलेज होना चाहिए कि, तो इसका गॉथिक स्टाइल है, या यस।
ये कोलोजियम का प्लान है, मतलब तुम इतना भी, मतलब अगर तुमने देखा होगा कोलोजियम के 2-3 इमेजेस देखे होंगे तो तुम गेस कर सकते हो कि ये रोमन कोलोजियम है करके। क्वेश्चन नंबर 55, ये थोड़ा आई थिंक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और इसको थोड़ा एस्थेटिक सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक इमेज दिया है तुमको और 4 विजुअल दिए और बोला है कि कौन सा उसको रिप्रेजेंट करता है या बिलोंग करता है। तो आइदर इसको तुम नॉलेज बेस्ड ट्रीट करोगे तो ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जनरल में आ जाएगा, लेकिन अगर तुम उसको लॉजिकली देखोगे कि क्या रिजेंबलेंस है, क्या है, किस तरह से, तो तभी इन बोथ द वेज आंसर इज बी। तो इसको मैं फॉर मेरे हिसाब से ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड जनरल में जाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बस कमेंट में बता देना कि ये इतना छोटा सा इमेज दिखा था क्या, मतलब तुम्हारा इतना छोटा इमेज दिखा था तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जूम तो शायद तुम नहीं कर पा रहे थे ना एग्जाम में। एक बार कमेंट में बता देना, मुझे भी क्लैरिटी आ जाएगा। ये जीके का क्वेश्चन है, इसका सी है। ये क्वेश्चन है 57, ये आई थिंक सीड या यूसीड से उठाया है वैसा का वैसा, इसका आंसर ए है। ये भी जीके का ही है 58, तो इसका मोटरोला होना चाहिए बिकॉज ऑल द अदर मैगी, मैकडोनल्ड्स एंड M&M ये सारे तुम्हारे फूड से रिलेटेड ब्रांड्स है। मोटरोला टेक्नोलॉजिकल कंपनी है ये, ठीक है। इसका सिडनी है, तो मतलब तुम आर्च, सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस से तुम देख सकते हो कि ये सी है डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 60, ये जो है ये तुम्हारा आई थिंक थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है उसका, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड है, काफ़ी डीप नॉलेज पे बेस है ये क्वेश्चन, लेकिन इसका फिबोनाची सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो उन्होंने एस्पेक्ट रेशियो दिया है ना इस इमेज का, ये गलत एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब अगर तुम फिबोनाची सीरीज या फिर गोल्डन रेक्टेंगल या फिर गोल्डन स्पाइरल सर्च करोगे तो ये जो रेक्टेंगल का जो x/y होता है वो यहाँ पे गलत है, ये ऑलमोस्ट स्क्वायर टाइप है ये। मतलब हम मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इस मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत है, बट मैं तुम्हें एज अ नॉलेज पार्ट बता रहा हूँ कि ये गलत क्वेश्चन है। मतलब ये जो इमेज दिया है इसको ये गलत इमेज है। जो रेक्टेंगल है इसका x एंड y जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो गलत है, तो इसका बी होना चाहिए फिबोनाची सीरीज। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग ब्रांड लोगो इज द ऑड वन आउट। इसका चारों तुम्हारे ऑटोमोबाइल कंपनीज है। मर्सिडीज है, आई थिंक फरारी है दूसरा, तीसरा तुम्हारा वॉल्वो है, चौथा फोक्सवैगन है। तो मतलब वॉल्वो को बाहर करने का कैसे, एक लॉजिक ये है कि ए, बी और डी में एक ही सिंगल आउटलाइन है, उसके बाहर कुछ भी नहीं जा रहा है, लेकिन वॉल्वो में सर्कल के बाहर वो एरो जा रहा है, तो वो एक लॉजिक हो सकता है। लेकिन दूसरा लॉजिक ये है कि ए, सी और डी में सर्कल है ना, मतलब मेन जो एलिमेंट है वो सर्कल है, बी में थोड़ा अलग है, तो एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, डिस्क्रिपेंसी है। इसका लॉजिक आइदर दे शुड एक्सप्लेन द लॉजिक या फिर इसको मार्क दे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 से स्पेशल एबिलिटी के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं तुम्हारे, और ये काफ़ी बढ़िया सवाल है डेफिनेटली फॉर श्योर। तो इसका तो सी है। ऑप्शन में थोड़ा काम होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कर सकते। 63 इज़ डेफिनेटली डी, नो प्रॉब्लम। 64 इज़ ए, यस, एरो की तरफ से देखना है। 65 काफ़ी बढ़िया सवाल है, इसको 4 डिफ़िकल्टी लेवल दिया है मैंने। ये मतलब अच्छा सवाल है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये सवाल, क्योंकि तुम्हें ये एक्चुअली होता है स्पेशल एबिलिटी की, तुम्हें अगर एक इमेज दिया है या 3D फिगर का एक ये दिया है, ड्राइंग दिया है, तो उसको कैसे मैनिपुलेट कर पाते हो, वो होता है स्पेशल एबिलिटी एग्जैक्टली। तो 65 काफ़ी बढ़िया सवाल है। ये भी यूसीड का या सीड का ही सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है ये वाला भी मुझे, मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर आई थिंक सी होना चाहिए। ये भी ठीक है, स्पेशल एबिलिटी है। 67 नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 68 जो है अभी, ये आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि ये कलर थ्योरी में आएगा या जनरल नॉलेज में आएगा। तो ये एक्चुअली जनरल नॉलेज में आएगा, क्योंकि कलर थ्योरी जो है तुम्हारा सिस्टम पूरा, कलर व्हील एंड प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स, उसमें पैंटॉन नहीं यूज द पैंटॉन इज़ अ कलर मैचिंग सिस्टम।
तो ये कलर थ्योरी में नहीं है, इसीलिए ये जीके का सवाल है। ओके, सो इसका बी है। टील, अभी यहाँ पे जो तुम्हें कोड्स दिख रहे हैं, सी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ऊपर जो है वो हेक्स कोड्स है शायद, और नीचे जो है वो तुम्हें आरजीबी कोड दिया है। अगर तुम्हें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो टू दैट, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरली फोटोशॉप में या जो डिजिटल सॉफ्टवेयर्स होते हैं फ़ोटो इमेजिंग के या अदरवाइज कोरल ड्रॉ हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कलर कोडिंग्स का पर्टिकुलरली। तो ये थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। हाँ मतलब ठीक है, बोल सकते हैं 4 डिफिकल्टी लेवल मैंने दिया है इसको। अच्छा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 70 भी ट्रिकी क्वेश्चन है। कलर स्कीम देखोगे तो प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन मैंने एक्चुअली मेरे लेक्चर में एक बार मेंशन किया था कि कलर व्हील में ट्रायडिक, जैसे जिस तरह से आपका एनालॉगस का एक सिस्टम है, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री का सिस्टम है, प्राइमरी कलर का सॉरी तुम्हारे डबल स्प्लिट का सिस्टम है, या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर का एक सिस्टम होता है, वो जैसे घूमेगा उस तरह से कलर्स आएंगे। सिमिलरली प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स जो हैं वो ट्रायडिक कलर स्कीम के सिस्टम में आता है। तो इसका आंसर ट्रायडिक कलर स्कीम है। ये भी बढ़िया सवाल है, इसके लिए तुम्हें काफ़ी नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। आई थिंक दीज आर MSQs। ये एस्थेटिक सेंसिटिविटी के क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। सो इसमें तो व्हाट आई विल डू, मैं इसमें हटाते जाऊंगा कि क्या नहीं है। तो इंट्रिकेसी मुझे नहीं लग रहा है, रिदम है थोड़ा सा, अगर तुम ये छोटा छोटा एलिमेंट्स देखोगे तो थोड़ा सा रिदम तो है। हायरार्की नहीं लग रहा है मुझे। फोकल पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी जगह पे मेरा अटेंशन जा रहा है। फोकल पॉइंट नहीं बोल सकते इसमें। ऑर्डर तो नहीं है क्योंकि काफ़ी थोड़ा इरेगुलर है। फ्लो तो डेफिनेटली नॉट। रिपीटेशन, हाँ रिपीटेशन तो है, छोटे छोटे पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स, हाँ रिपीटेशन यू कैन से। और कंटिन्यूटी, अच्छा फोकल पॉइंट और रिपीटेशन दिया है। फोकल पॉइंट थोड़ा डाउटफुल है, आई एम लिटिल डाउटफुल अबाउट फोकल पॉइंट, मतलब कहाँ पे फोकस हो रहा है, बिकॉज फोकल पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है। आई डोंट थिंक फोकल पॉइंट इज द राइट ऑप्शन, बट ठीक है उन्होंने दिया है। इसको शायद तुम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि काउंसिल ने बोला था कि इसको जो हम फाइनलाइज कर देंगे वही होगा। इसमें तो ठीक है, विदाउट ऑप्शन देखिए भी फ्लो है, दिस यू कैन सी। रिपीटेशन, पैरेललिज्म, रिपीटेशन या ओके, वाइब्रेशन नहीं, कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, इंट्रिकसी नहीं, फ्लो हमने बोल दिया, फोकल पॉइंट नहीं है। यस सी, जैसे इसमें फोकल पॉइंट नहीं है ना, उसी लॉजिक से इसमें भी फोकल पॉइंट नहीं है। ओके तो बट ठीक है। डेटम तो नहीं है इसमें। अच्छा अभी रिपीटेशन या फ्लो के साथ रिपीटेशन या पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में कैसा है ना कि पैरेललिज्म में लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, और रिपीटेशन में चीज़ें रिपीट होती है, तो हाँ इसको मैं पैरेललिज्म बोलूँगा। नॉट एग्जैक्टली बट ठीक है, अगर चूज करना है तो पैरेललिज्म एंड फ्लो। चूज द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स इन द गिवन। अच्छा पैराडाइम शिफ्ट, फोकल पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट, सिमेट्री, रिपीटेशन, हायरार्की, फ्लो या डायरेक्शन। कॉन्ट्रास्ट से सिमेट्री नहीं यार, सिमेट्री तो नहीं है इसमें। सिमेट्री तो आई डोंट थिंक इसमें सिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है। वेयर इज दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें? रिपीटेशन, 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 रिपीटेशन है, रिपीटेशन बोल सकते हैं। सिमेट्री नहीं है यार इसमें। सिमेट्री लाइक यू नीड, सिमेट्री का वही होता है ना, सिमेट्री के लिए यू नीड एग्जैक्ट कट टू कट सिमेट्री। ऐसे थोड़ा सिमेट्री है थोड़ा सिमेट्री नहीं है, ऐसा नहीं चलता है सिमेट्री में। और सिमेट्री होगा तो फिर सिमेट्री इन कॉन्ट्रास्ट है, तो फिर वो आइदर सिमेट्री और कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। अगर हम सिमेट्री को थोड़ा उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े कम कर देते तो, बट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। 74 ये जीके का क्वेश्चन है, ये एस्थेटिक सेंसिटिविटी का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें सररियलिज्म तुम्हें आर्ट मूवमेंट बोला है, और इसका आई थिंक सी होना चाहिए एक्चुअली। मतलब वैसे मुझे पता है इसका आंसर, क्योंकि ये अगेन दिस इज अ जीके क्वेश्चन। मोस्टली सररियलिज्म में सबसे प्रोमिनेंट पेंटर है तुम्हारे
साल्वाडोर डाली, उसमें से आई थिंक सी इज़ नॉट द surrealistic पेंटिंग. 75 एक्शन पेंटिंग इज बेस्ट डिपिक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग. नाउ इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ मैं तुम्हें. एक्शन पेंटिंग तुम्हें पता करने का एक तरीका है, ठीक है. व्हाट यू डू इज यू गो टू गूगल, यू सर्च टाइप ऑफ पेंटिंग्स. विकीपीडिया पे जाओ, ऑलमोस्ट एंडिंग में तुम्हें एक्शन पेंटिंग मिलेगा. तो आई थिंक आई डोंट नो कि यही उनका मेथोडोलॉजी रहा है क्या, लेकिन दैट टेकिंग दैट अपार्ट, आई थिंक एक्शन पेंटिंग अगर तुम थोड़ा लॉजिकली भी सोचो कि एक्शन पेंटिंग इज मोर और लेस रिलेटेड टू फिजिकल मूवमेंट वाइल पेंटिंग, तो इसका अगर तुम अदरवाइज भी देखो ऑप्शंस को तो इसका सी ही बैठेगा. जैक्सन पॉलक का पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा का सी होना चाहिए. हाँ राइट, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. बी तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है, बी तो इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. ए, सी और डी में इसमें लॉजिक तभी तुम अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हें नॉलेज है उतना. तो बट मुझे बिकॉज आई नो कि राजा रवि वर्मा का पेंटिंग क्या है, तो इट वुड बी सी. इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. अगर तुम्हें नहीं पता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राजा रवि वर्मा's पेंटिंग, देन मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि यूरोपियन एकेडमिक आर्ट जो होता है विद प्योरली इंडियन सेंसिबिलिटी एंड आइकोनोग्राफी, ये दोनों जब तुम्हें पता होंगे तभी तुम सी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर तुम्हें यूरोपियन एकेडमिक आर्ट ये टर्म तुम्हें पता है तो तुम्हें राजा रवि वर्मा के बारे में पता ही होगा. तो ये थोड़ा खुद में ही कैच 22 वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है, नॉलेज क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग एब्स्ट्रैक्ट जॉय ऑप्टिमिज्म, इसमें कैंसलेशन से आएगा आई थिंक. मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बी बहुत जॉय दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन बी उन चारों में से सबसे अच्छा जॉय दिखा रहा है, तो आई थिंक आई वुड गो विद बी. ये बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 78 काफ़ी बढ़िया सवाल है, कलर थ्योरी का है ये. इसमें थोड़ा तुम्हें अच्छे से मतलब क्रिटिकली सोचना पड़ेगा. तो इसका आंसर बी है, TQR करेक्ट. यस, अभी यहाँ से तुम्हारे रिडल्स चालू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 से. इन सबको मैंने डिफ़िकल्टी लेवल 1 दिया है. दे आर नॉट डिफ़िकल्ट और ठीक है, NAQ में है ये सारे. तो जॉन्स मदर हैड 4 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड इज नेम अप्रैल, मई, जून. ठीक है, मतलब व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन है, इसका जॉन ही होगा. इफ़ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग नॉर्थ एट 100 माइल्स पर आवर एंड विंड इज ब्लोइंग टू द, तो नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रिक कार है तो. हाँ ओके, नो डायरेक्शन. अभी इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कोई सिगरेट पी रहा होगा उसमें, या फिर उसमें आग लग गई. तो ठीक है, इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए. सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा उसका आंसर देके मार्क लेके जाओ. टर्न मी ऑन माई साइड, ये तो बहुत व्हाट्सएप मतलब इंस्टाग्राम पे तुम मीम पेजेस फॉलो करते हो, उस पर भी मिल जाएगा. काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि ऐसा है. A driver needs to pass under a bridge but his truck is 1 inch too tall. However, despite this, the driver finds a way to continue. अगर उसने अपने टायर का हवा निकाल दिया तो जा सकता है ना, ट्रक के साथ भी जा सकता है. हवा निकाल देगा तो बाद में भर लेगा हवा, कोई दिक्कत नहीं. वॉकिंग, अच्छा यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि ही टेक्स अ डिफरेंट पाथ, जो गलत है, आई एग्री. या फिर काफ़ी लोगों ने लिखा है कि अगर हमने हवा निकाली तो क्या उसको गलत देंगे ये लोग, क्योंकि गलत तो नहीं है ना, हवा कम होगा. ऐसा नहीं है कि 2 फुट 3 फुट कम है, 1 ही इंच कम है. तो ट्रक हवा निकालोगे तो ट्रक तो चला जाएगा ना. तो क्या अगर मैंने वो लिखा है तो क्या इसको ये सही देंगे. अच्छा, ये 83 जो है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि कोई क्राइम किया है तो वो कैसे बचेगा. यहाँ पे नेचुरल डेथ लिखा होगा तो क्या बोलेंगे फिर, ये भी गलत होगा क्या. सम क्वेश्चंस आई हैव. 84 में 1 डजन थे, फिर मर गए, कितना चिकन है, तो 12 चिकन. मतलब आइदर इसका लॉजिक ऐसा है कि 8 मरे हुए और 4 जिंदा. ये भी थोड़ा व्हाट्सएप टाइप ही सवाल है. क्वेश्चन नंबर 85 का एक्चुअली थोड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल है. मतलब दिमाग खुला है या नहीं तुम्हारा, तो उसका 3rd रूम होना चाहिए. ठीक है.
86 इज ठीक है, हॉर्स रेसिंग, नॉट गोना कमेंट ऑन दैट। 87 काफ़ी बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। ये इट इज़ ऑल्सो, ये स्पेशल एबिलिटी का क्वेश्चन है, स्पेशल एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी का मिक्स है ये, तो इसको तुम्हें फिगर वगैरह बनाना पड़ता है शायद, तो इसका आंसर 35 है फॉर श्योर। 88 इज डेफिनेटली एनालिटिकल नॉन वर्बल एबिलिटी, ये तुम्हारा अच्छा सवाल है। इन अ पॉन्ड देयर आर सम, इसका इक्वेशन बना लो, हो जाएगा, नॉट वेरी डिफिकल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 जो है, नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स मुंबई फॉर पुणे एट 60, अनदर नॉन स्टॉप ट्रेन लीव्स, ओके। अच्छा, मुझे एक यहाँ पे डाउट है कि should they not have given the distance between two cities to solve this question? मतलब either उन्होंने नहीं दिया, अगर उन्होंने नहीं दिया है या उनकी तरफ से गलती है तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, या फिर मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो कि मुंबई और पुणे के बीच में कितना डिफरेंस है किलोमीटर वाइज। तो थोड़ा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन लगा मुझे ये, इसका तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या, व्हाट डू यू थिंक इज अबाउट दैट। क्योंकि मैं तो बता सकता हूँ, या फिर जो महाराष्ट्र में रहते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में या कहीं कोई और रहता है तो वो उसको शायद नहीं पता होगा ना मुंबई पुणे का डिस्टेंस। जैसे मुझे लखनऊ और भोपाल के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, बिकॉज आई स्टे इन महाराष्ट्र, तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही चिल्लर है, बहुत ही चिल्लर है ये क्वेश्चन, मतलब पाइथागोरस थ्योरम करना है। क्वेश्चन नंबर 92 मैंने शायद तुम्हारे किसी टेस्ट में डाला था, तो उसका 44 है। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, इसका 104 है। 15 इंटू 1 प्लस 1 इज 16, 16 इंटू 2 प्लस 2 इज 34, देन इसी लॉजिक से जाओगे तो 104 इज द रॉन्ग वन। 94 वाला जो है ये जमेगा, मतलब इसका आंसर 10 होना चाहिए। उसका ओरिजिनल स्पीड 12.5 है, विद द स्ट्रीम जाएगा तो 2.5 ऐड हो जाएगा, और विदाउट अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये बहुत, मतलब फॉर्मूला नहीं पता होगा फिर भी जम जाएगा क्वेश्चन तुमको। हाउ मेनी टाइम्स द बोथ, ओके। ये एक्चुअली मैंने एग्जाम के एक दिन पहले क्लास में करवाया था, किसने पूछा था मुझे ये सवाल, तो इसका 22 है, 24 नहीं है, सही है ये। क्वेश्चन नंबर 96 मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम लोगों को पता है तो आई थिंक इसका आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 97 जो है ना, इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें तुम्हें अज्यूम करना पड़ रहा है, लाइक यू हैव टू अज्यूम कि जैसे इसका आंसर निकालना होगा तो तुम निकाल सकते हो 256, लेकिन अज्यूम करना ये साइंटिफिक टेम्पर में नहीं आता ना, तब अज्यूम नहीं कर सकते तुम एग्जैक्टली। अगर मतलब यूसीड में ये क्वेश्चन नहीं, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन होगा यूसीड में, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, क्योंकि यूसीड में लॉजिक दिया होता है, कुछ ना कुछ डेटा दिया होता है, इसमें आई थिंक थोड़ा कम डेटा है, बट ठीक है, अगर आंसर देना ही होगा तो दे सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉजिक लगे दे सकते हैं। इन द गिवन फिगर द क्यूब, ये यूसीड का क्वेश्चन है, सीधा सीधा यूसीड या सीड का, इसका आंसर 10 है। बहुत सिंपल है ये, मतलब अगर तुम्हें लॉजिक पता चले क्या देखना है तो इसको आई गिव यू ट्रिक, सॉलिड डायगोनल एक बार चेक करो, उसका इज द हिंट। ये जो है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें भी मुझे थोड़ा दिक्कत है कि लेंथ तो आपने दे दिया, लेकिन विड्थ या फिर हाइट जो है रेक्टेंगल का वो नहीं दोगे, तब तक वो कितना इंटरसेक्ट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा ना, लाइक आई डोंट नो, ये थोड़ा पॉइंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे ये क्वेश्चन। मे बी आई एम रॉन्ग हियर, लेट मी नो इफ यू थिंक अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 100, आई थिंक ये जम जाएगा क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इफ़ यू आर रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट अ स्पीड, ठीक है, फिजिक्स है, बट अच्छा क्वेश्चन है। 102 बहुत सिंपल है, काउंट कर लोगे तुम, ये 103 ये यूसीड का क्वेश्चन है, बाय द वे सिंपल क्वेश्चन है ये है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 104 इज अ ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी का क्वेश्चन, कि तुम्हें चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली, तो इसका S4 है शायद, एकदम ही कॉर्नर में है वो वाला। क्वेश्चन नंबर 105, ये तो उन्होंने सही दे दिया है सबको, ठीक है, क्योंकि मतलब E5 वहीं पे है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये। आई थिंक PTQs है तुम्हारे, और सॉरी दीज आर आल्सो MSQs। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स, तो इसमें स्केल आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट,
टेक्सचर, हाँ टेक्सचर आएगा, स्केल बोल दिया, सिमिट्री नहीं है इसमें, सिमिट्री डेफिनेटली नॉट, बैलेंस हाँ बैलेंस बोल सकते हो काफ़ी हद तक, रिदम नहीं, रिपीटेशन नहीं, डायरेक्शन नहीं, फॉर्म नहीं। 3 बोला है तो अच्छा यहाँ पे 5 बोला है, अच्छा हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना कि 5 बोला है तुमको, लेकिन ऑप्शन में 4 ही सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 ही दिया है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे इस इशू को, आई एम नॉट श्योर। अच्छा इसमें हायरार्की नहीं, बैलेंस हाँ फिजिकल बैलेंस है, डायनामिज्म ठीक है, डायनामिज्म, डेलिकेटनेस नहीं, अनस्टेबल नहीं, डायरेक्शन ठीक है, फॉर्म हाँ फॉर्म है, डिस्टॉर्शन नहीं है, तो बैलेंस डायनामिज्म ठीक है, या दिस वन इज करेक्ट। 108 में बोला है स्टेबिलिटी नहीं, आई थिंक मतलब वही है क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। मिनिमलिज्म, इंट्रिकसी नहीं, असिमेट्री यस, डेप्थ यस यू कैन से, प्योर फॉर्म्स यस, कन्वर्जेंस नहीं, डेलिकेट नहीं। मिनिमलिज्म तो नहीं है यार, मिनिमलिज्म का मतलब कुछ और होता है, ये इसको just because there are very few elements it does not mean that it is minimalism. Minimalism is not using very few elements, minimalism is something different, तो मेरे हिसाब से इसमें minimalism नहीं होना चाहिए था। ये तो काफ़ी ही सिंपल है, इसका डी है मेरे हिसाब से। हाँ 110 भी काफ़ी चिल्लर है, तुम मतलब देखो स्टाइल करो तो तुम्हें सी आ जाना चाहिए इसका आंसर। ओके इसका अभी सेंट पीटर्स बेसिलिका का प्लान दिया है तुमको, और स्टडिंग अच्छा, तो आर वी सपोज टू कंसिडर ओनली द प्लाजा और द होल प्लान, स्टडिंग द प्लान फ्रॉम आइडेंटिफाई द 3 मेन एलिमेंट्स, अच्छा डिफाइन द प्लाजा। ओके तो सी अगर तुमने नहीं देखा है इसको, इसका फोटो नहीं देखा है तो तुम्हें शायद थोड़ा हेल्प हो, डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलोनेड तो है फॉर श्योर, कॉलोनेड है, ओबेलिस्क भी है, और पोर्च भी होना चाहिए, क्योंकि बाकी कुछ नहीं है, शॉपिंग आर्केड नहीं है, डोम चर्च का पार्ट है, प्लाजा का पार्ट नहीं है, एवेन्यू ट्रीज नहीं है, लैंडस्केप गार्डन नहीं है, वाटर बॉडी भी नहीं है, तो आई थिंक आई विल गो विथ कॉलोनेड, ओबेलिस्क एंड या पोर्च करेक्ट। मीनाक्षी टेम्पल ठीक है, टेम्पल्स हैं ठीक है। अच्छा 3 मोस्ट पर्टिकुलर बिल्ड एलिमेंट दैट डिफाइन दीज एनक्लोजर्स। ओके तो इसमें सबसे पहला तो तुम्हारा ये आएगा, गोपुरम्स आएगा, उसके बाद मंडपाज आएगा ठीक है, अलग अलग मंडपाज हैं, और प्रकारम मतलब परिक्रमा ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। ये जयपुर कला केंद्र है बाय द वे, काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से फॉर्म किया है प्रॉपरली। द प्लान फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज एन एनालॉग ऑफ द प्लान ऑफ सिटी ऑफ जयपुर। ठीक है। ओके मंडला तो नहीं है इसमें, मंडला तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मंडला में सर्कुलर सिमेट्री होता है, इसमें सर्कुलर सिमेट्री नहीं लगता है मुझे। बाजार नहीं शायद, डिस्टॉर्शन नहीं, कुंड बोल सकते हो, सेंट्रल में जो कुंड है उसको बोल सकते हैं। सिंबॉलिज्म है, क्योंकि इन्होंने खुद क्वेश्चन में ही बोला है कि एनालॉग ऑफ द प्लान ऑफ सिटी ऑफ जयपुर, और ये एक्चुअली तुम्हारा जो वास्तु शास्त्र में जो होता है 9 स्क्वायर्स वाला, उससे मिलता जुलता है, एक्सेप्ट कि जो एक स्क्वायर है वो बाहर हटा दिया है। मेज बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, मेज यू कैन से डेफिनेटली, क्योंकि जयपुर के जो स्ट्रीट्स हैं दोज आर ऑल्सो काइंड ऑफ मेज लाइक, तो मेज हो सकता है। तो इसमें मंडला, कुंड और सिंबल, मंडला नहीं है यार, मंडला तो नहीं है इसमें डेफिनेटली। अच्छा इन द 2 इमेजेस गिवन बिलो, अच्छा ठीक है ये कर लोगे तुम लोग, इस 115 का इमेज मेरे पास नहीं है, और आई थिंक इसके बाद जो भी क्वेश्चंस थे वो 30 सेकेंड दिखाए गए थे तुम लोगों को, और ठीक है। इसमें क्या, व्हाट विल आई ऑब्जर्व, ट्रीज, क्लाउड्स, मे बी डॉग्स, बेंचेस, ट्रीज, ओल्ड पीपल, या
घर, मेरी ओल्ड पीपल। सी ये मतलब तुमने इसका पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला है कि ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है ऑनेस्टली, ये मेमोरी रिटेंशन का पार्ट है कि तुम्हें एक चीज़ दिखाई जाती है तो तुम्हारा ब्रेन उसको कितना रिटेन करता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसको ऑब्जर्वेशन नहीं बोल सकते। ऑब्जर्वेशन का ये क्वेश्चंस नहीं है, ये वाले 30 सेकेंड्स वाले। ठीक है, अभी नहीं, मैं नहीं सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, आई थिंक या सो दिस वाज द पेपर। और अभी आई विल गिव यू अ शॉर्ट मेरा फाइनल रिव्यू क्या है पेपर के बारे में, और आगे का क्या प्लान रहेगा हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। Alright, so that was the paper. Now I have already done my analysis of the paper. Let me tell you what I found. As we know already that there are a total 125 questions, out of which 75 questions are for 1 marks, 25 questions are for 2 marks, and 25 questions are for 3 marks. This was given by Council of Architecture, so no big brain time here. Now second parameter that we considered was number of questions or number of question types. So there were total 87 MCQs, almost 70%, 25 NAQs, 6 MSQs, and 7 PTQs. So this was question types, distribution. Now as if you see the difficulty level, you see the difficulty level is according to my understanding. So in that context, 43 questions I found to be very easy, 42 questions I found to be around moderate easy, 21 questions were moderate difficult, and 20 questions were difficult. If you see subject wise, so I have divided the paper in two sections. So major subjects in the first section are verbal ability, that is total 25 questions, and mainly because of the passages. Then you have architecture aptitude, 22 questions, observational ability 12 questions, mathematics 12 questions, general knowledge 9 questions, theory of design, that is elements and principle of design, total 9 questions. So this was the major subjects according to me, according to the number of question types and number. So this was the major subjects according to the number of questions asked on them. And the minor subjects were, there were 8 riddles, 8 spatial ability, 6 questions of physics, 5 questions of geometry, logical reasoning 4 questions, non-verbal ability 2 questions, and analytical ability 1 question. Yeah, so this was my analysis of NATA 2021 April attempt. If you want these visuals, they are also on Instagram, link niche hai. If you want, you can follow. Okay, so finally, what do I think of the paper? Now if you have seen my previous video, the rant, I still agree with those feelings. I still feel that paper could have been drawn in a much more architecture focused way rather than a general mental ability type questions. But that being said, the paper wasn't difficult. The paper was different. It was not a difficult paper. You cannot say that the paper was very difficult and we are going to get low marks. No, the paper was just different. And we saw from the analysis that around 85 questions were either easy questions or moderate easy question. That is around 70% of the whole paper was easy or moderate easy. And I did my deep analysis as well. I think only 5% of the questions needed more than 3 minutes because they required that much of critical mental ability or thinking ability. So I don't think the paper was that difficult. Again, it was just a different paper than what we are used to see in previous years or sample test as well. So what do we do now? ओके, सबसे पहले तो ये एनालिसिस को समझो एक बार अच्छे से कि पेपर किस तरह से निकाला गया है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मार्क है, किस सब्जेक्ट पे कम मार्क है. उससे क्या होगा कि तुम्हारा एक ग्रिप बैठ जाएगा कि बाबा एटलीस्ट अराउंड ये आता है एग्जाम में, सो दैट जून अटेम्प्ट के लिए तुम बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे. मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है ये ऐसा का ऐसा कट टू कट आएगा एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
थोड़ा इधर उधर हो सकता है, या ऐसा ना हो लेकिन पूरा पेपर पैटर्न भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ में अभी यही है, तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। सेकेंडली, हमें रिजल्ट्स के लिए रुकना पड़ेगा। एक बार रिजल्ट आने दो, मुझे देखने दो कि इस पेपर पैटर्न पे और इस डिफिकल्टी लेवल पे क्या सबसे हाईएस्ट स्कोर है, सो दैट मैं भी आगे उसका भी एनालिसिस कर पाऊँ, और फिर आगे का जो वीडियोस और कंटेंट तुम्हारे लिए प्लान है उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा या नहीं, वो मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। अनदर थिंग इज़ कि जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा खुद का भी एनालिसिस करो, देखो कि तुम्हारे पास ही अभी एनालिसिस पड़ा है, इंस्टाग्राम पे भी इसका विजुअल्स है। तुम देखो कि तुम्हारे एमसीक्यू में मार्क ज़्यादा गए हैं, एमएसक्यू में गए हैं, पीटीक्यू में गए हैं कि एनएक्यू में गए हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज किस पे जा रहे हैं, फिजिक्स पे जा रहे हैं, मैथ्स पे जा रहे हैं। यू हैव टू डू दैट एनालिसिस, क्योंकि जब तक तुम वो नहीं करोगे तब तक तुम्हें ये नहीं समझेगा कि कहाँ पे तुम्हें मार्क्स और ज़्यादा बढ़ाना है और कौन सा तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है। तो ये दो चीज़ें हमें करनी है। पहले एनालिसिस समझ लो ये वाला, फिर रिजल्ट आने दो, और फिर उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट का भी एनालिसिस तुम्हें करना पड़ेगा। नाउ लेट द रिजल्ट कम आउट, हम उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। नाउ अनदर थिंग, मैंने सुना कि तुम्हारा बोर्ड पोस्टपोन हो गया है। मैं उसके बारे में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बट आई थिंक जो सिचुएशन है बाहर अभी कोविड का, अगर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो जून जुलाई के बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। और अगर तुम्हारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा आइदर डेट क्लैश की वजह से या जो भी बाहर सिचुएशन है उसकी वजह से तुम्हारा जेडबली का और नाटा का दोनों का डेट भी पोस्टपोन हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी आई एम सेइंग। तो काफ़ी टाइम है तुम्हारे पास, पूरा मई का महीना है, मैं ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, तुम्हारा बोर्ड चलते रहने दो, लेकिन नाउ यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ JEE-2 एंड नाटा एज वेल। तो उसके बेसिस पे भी तुम्हारा कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हो, मैं तुम्हें बीच बीच में गाइड करते ही रहूँगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। एक छोटी सी बात मैं एक बार लास्ट टाइम रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कल 4 बजे 18 अप्रैल को एक छोटा सा मीटिंग है, जिसमें जो आने वाला क्रैश कोर्स है उसके बारे में आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद माय किड्स, जो कि क्या टाइमिंग रहेगा, कितना टाइम लेना है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड तो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, मेरा नंबर मैं दे रहा हूँ नीचे, टेक्स्ट करो, आई विल शेयर यू द लिंक। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कन्वर्सेशन या हमारा जो इंटरेक्शन है वो ऐसे भी हमेशा चलता रहेगा ही। सो दैट बीइंग सेड, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इनफ। आई थिंक दिस एनालिसिस हेल्प्ड यू, और ये शायद आगे जाके भी तुम्हें हेल्प होगा काफ़ी अच्छे से। एंड yeah, thank you for your time. I will see you in the next video. Cheers. Expect more. Experience.